Assalamualaikum dear students. In this audio, I am going to cover the topic that is how to fill an application form. And you people are well aware of the fact that application form or cover letter are same. So the topic is about how to fill the application form and how to write the cover letter. So you should know first of all about the solicited application letter and unsolicited application letter and the details that are to be added in the application or in the cover letter, and the format, the title, the subject, how to address, how to end, how to format. So the conclusion. So the topic as it is in your outline. So basically we will study about the physical form of the application. We will study about how to start, how to end, what to write in the middle, the subject, especially salutations, right, date, closing, ending, beginning, middle, end. So and then also the samples about this topic, right? So samples regarding both solicited and unsolicited application. So let's start the topic. First of all, we should know the difference between what is solicited and what is unsolicited application letter. So solicited are those application letters that are already advertised, that are in the newspaper, that we got to know in the newspaper advertisements or through websites, company websites, or from other sources. So there is this open hiring, and we got to know about the job, about the advertisement. So the letter that we are going to write is about the already known advertisement that we got to know from some source. It can either be from newspaper, from magazine, from a website, राइट. सो जो पहले से पब्लिश हुई हुई एडवर्टीजमेंट होती है उसको हम सॉलिसिटेड एप्लीकेशन कहते हैं, राइट. और जो हम खुद देते हैं, उसकी कोई एड नहीं आई होती, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आई हुई होती, लेकिन हम खुद से जो है अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए, उस कंपनी में जो अनएडवर्टाइज्ड पोजीशन के लिए हम करते हैं अप्लाई, वो हमारे पास अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर होती है. सो बेसिक सा डिफरेंस है. स्टार्ट करते हैं. सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर. सॉलिसिटेड एप्लीकेशन letters are written for position advertised online in newspaper, through job search websites, company websites, or word of mouth. Advertised positions indicate that the company has a job opening and is actively looking to hire. These letters are written when the application's skills fit the advertised position, right? So वो solicited application है जो जिसमें ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट दी गई है, ऑनलाइन हो जाए, मैगजीन के थ्रू हो जाए, न्यूज़पेपर के थ्रू हो जाए, वेबसाइट के थ्रू हो जाए. उन्होंने पब्लिश करके बता दिया, एडवर्टाइज करके इश्तिहार देके बता दिया कि जनाब हमें इस जॉब के लिए इस कैंडिडेट की तलाश है, उसकी ये स्किल्स हों, उसके अंदर ये क्वालिटीज हों. आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट किस किस टाइप की होती हैं और जॉब एडवर्टीजमेंट खासतौर पे उनमें क्या क्या जो है वो पब्लिश किया जाता है. सैलरी भी मेंशन होती है और भी बहुत सी चीजें जो है मेंशन करते हैं कि हमें ये एज चाहिए, ये जेंडर चाहिए, ये हमारी लोकेशन है. ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन होती है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब एडवर्टीजमेंट, राइट. सो वो जो जॉब एडवर्टीजमेंट में पब्लिश होकर आएगा लेटर, एडवर्टीजमेंट जो हमारे तक पहुंचेगी, उसके लिए जवाब में जो हम एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे वो क्या होगा? सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर होगा. उसमें वो बताएंगे कि हमारी हायरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, इट्स ओपन नाउ एंड यू कैन अप्लाई. द कैंडिडेट्स विच सूट्स दैट advertisement, that suits that post, can now apply for this job, right? So वो जो है हमारे पास उसके रिस्पॉन्स में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर. सो व्हाट टू इंक्लूड इन अ सॉलिसिटेड लेटर? सॉलिसिटेड एप्लीकेशन शुड आउटलाइन द पोजीशन बीइंग अप्लाइड फॉर. सबसे पहले तो आपने बताना है, मेंशन करना है कि जनाब हमने इस पोजीशन के लिए किया है, क्योंकि हो सकता है कंपनी ने एक ही वक्त में बहुत सी पोजीशंस जो हैं, बहुत सी जो है वो जॉब्स निकाली हो, राइट. तो हो सकता है क्लर्क की हो, हेड क्लर्क की हो, और भी बहुत सी जॉब्स हो सकती हैं, राइट. टीचर की हो, और उससे हाई पोस्ट की हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंशन द पोजीशन यू आर बीइंग अप्लाइड फॉर.
how the applicant learned about the position, then you need to tell that I got to know from the newspaper, I got to know from online advertisement, I got to know from the website, I got to know from my colleagues. जहां से भी आपको पता लगा है इश्तिहार का, कहां से पता लगा है कि जो पोस्ट है वो अब ओपन है, you have to mention the source, right? Then the applicant qualification, अपनी qualification आप बताएंगे कि अगर उन्होंने MPhil बताया है requirement है, then you have to mention that I am MPhil qualified, right? How this क्वालिफिकेशंस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके स्किल्स, आपके मेरिट्स, आपकी स्ट्रेंथ किस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकती हैं. लेटर शुड एंड विद अ रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरव्यू, और एंडिंग इस तरह से करनी है कि आपने रिक्वेस्ट करनी है फॉर द इंटरव्यू, दैट यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, राइट. सो अपना टाइटल आप बताएंगे, अपनी पोजीशन का बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन का बताएंगे, how you are going to strengthen in your through your qualification their organization, through your talent their organization, उनको कैसे strengthen करेंगे, और फिर request for the interview. So इसमें beginning होगी, middle होगा और ending होगी. Next we have unsolicited application letters. Unsolicited or prospecting application letters are written for unadvertised position. इश्तिहार नहीं दिया गया फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं. Applicants write this letter when they have a strong interest in a certain company. एक खास कंपनी में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसलिए आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बट डू नॉट नो इफ द कंपनी इज हायरिंग और हैज एन ओपनिंग. आपको नहीं पता कि उन्होंने भर्तियां शुरू कर दी हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, but still you want to work in that company, or you have a strong tendency or a desire to work in that particular company. So that's why you are applying there. You are sending your CV and your cover letter with the hope that might be they are going to select you. So they are written both as an inquiry into open position and as a description of an applicant's skill. Sometimes they are also used when inquiring about internships. Internships क्या होती हैं? 5 महीने की, 6 महीने की, 7 महीने की होती हैं. उसमें अमूमन जो है वो आपको एज एक्सपीरियंस आप काम करते हैं, और उसकी या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, या फिर अगर उसका पैकेज भी हो, सैलरी पैकेज, तो बहुत कम होता है. तो इसमें बेसिकली आपका मकसद ये होता है कि आपने एक्सपीरियंस हासिल करना है. तो इंटर्नशिप के लिए भी आप पूछ सकते हैं कि अगर इंटर्नशिप के लिए चाहिए तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ या करती हूँ, या फिर आपको आप ये साथ लिख रहे होते हैं कि यू आर होपफुल कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा बिकॉज यू हैव फ्ला स्किल्स, राइट. सो यू आर होपफुल फॉर दैट. और इसके अलावा अगर जॉब आ भी रही है इस पोस्ट के लिए, देन यू आर अप्लाइंग एज अ सुटेबल कैंडिडेट, यू आर अप्लाइंग योरसेल्फ एज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. So what to include in an unsolicited letter? The letter should outline the applicant's interest in the company. सबसे पहले तो कंपनी के बारे में आपने अपना इंटरेस्ट बताना है, that why you are interested in that particular company or organization. क्योंकि आपने कंपनी को अपना इंटरेस्ट दिखाना है. कंपनी हायरिंग नहीं कर रही, आपने उनको बताना है कि आपकी दिलचस्पी उससे कैसे है, कि आप क्या हो सकता है आपका कोई गहरा ताल्लुक हो उससे, हो सकता है आपके किसी सिबलिंग ने ऑलरेडी वहां पे काम किया हो सकता है उसकी साख अच्छी हो कंपनी की, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी कंपनी हो जो आपको रातों रात जो है वो फायदा दे सकती है, या कुछ भी हो सकता है that you have certain attachment with that particular company. So you are going to state the your interest in that particular company or organization. The desired job description and the applicant's qualification for the desired position. ठीक है, आप किस position के लिए कर रहे हैं, आपकी क्या qualification है, और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन अपने बारे में आप बताएंगे. सो एप्लीकेंट शुड हाईलाइट द यूनिक स्किल्स दैट कुड ब्रिंग टू द कंपनी. सो अनसॉलिसिटेड में भी और सॉलिसिटेड में भी यू हैव टू स्टेट about your qualifications and about your skills and about your qualities that is going to bring a revolution in that company, that is going to bring an altogether positive results in that company. ठीक है, आपके अंदर क्या सलाहियतें ऐसी हैं जो कंपनी के अंदर फर्दर निखार पैदा कर सकती हैं, कंपनी को अच्छा कर सकती हैं. Applicants looking for unsolicited positions need to explain why the company should include a position for them.
ठीक है, आपके लिए वो क्यों जगह बनाए, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो वाकई के लिए नहीं, बिकॉज यू आर नाउ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ सूटेबल कैंडिडेट। तो आपने उनको रीजन स्टेट करनी है कि जनाब मेरे पास फलां का भी एक्सपीरियंस है, फलां भी एक्सपीरियंस है, और मेरे पास फलां डिग्री है, फलां क्वालिफिकेशन है, दैट्स व्हाई आई एम सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, राइट। तो अपनी पोजीशन भी आप स्टेट करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन भी स्टेट करेंगे, एंड ऑल्सो योर डिजायर्ड इंटरेस्ट फॉर दैट कंपनी। सो दिस लेटर शुड एंड विद रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरव्यू। तो ये भी उसी तरह से इंटरव्यू की रिक्वेस्ट पे ही एंडिंग होगी इसकी भी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन solicited and unsolicited application letter. Next we have details. हमने क्या उसमें further add करना है. So when writing a solicited letter, address the main point of the letter immediately without spending too much time or unnecessary details. Details unnecessary नहीं होनी चाहिए. Starting पे ही आप अपने मुद्दा पे आ जाएं, अपने main point पे आ जाएं कि आपने ये चीज जो है उसमें बयान करनी है. An unsolicited letter must immediately catch the reader's interest, right? So आपने खुद अपने आप को इंटरेस्टिंग पेश करना है, क्योंकि उनको जो है हो सकता है जॉब के लिए उनको नहीं चाहिए हो कोई कैंडिडेट, भर्तियां जो है वो नहीं कर रहे हो सकता है वैकेंसी भी उनकी फिलअप ना हो, उन्होंने आपके लिए जगह बनानी है बिकॉज आप अपने आप को पेश कर रहे हैं. सो मेक श्योर योर starting should be so appealing that it would catch the reader's attention or interest. Employers expect solicited letters when a job opening was announced. However, if no opening was posted, employers generally are not expecting to receive application letters. So, expectations नहीं होती उनकी, क्योंकि उन्होंने तो पोस्टिंग के लिए ओपन ही नहीं की होती एडवर्टीजमेंट. सो आपने अपने आप को पेश इस तरह से करना है कि आप अपीलिंग लगें, कि अच्छी लगें. Therefore, an unsolicited letter must focus on benefiting the company and the interest. And unsolicited letter must also take action by the writer stating his intentions to call the company for a follow-up discussion regarding the application. राइट. सो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि आपने कंपनी को कहाँ पे बेनिफिट करना है, कहाँ पे फायदा देना है, आप उनकी कंपनी के लिए कैसे जरूरी हैं, कैसे अहम है. सेम गोज विद इंटरव्यू. सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि वाई यू एंड वाई नॉट द अदर पीपल वेटिंग आउटसाइड, आप भी क्यों, राइट. सो यू हैव टू state your merits and demerits. You have to talk about them and you have to persuade them. मुतासिर करना है उनको. Same goes with this letter कि आपने अपनी जगह खुद बनानी है और उनको खुद करना है इस तरह से कि वो आपको फॉलो अप के लिए बुलाएं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं. गोल. The goal of the solicited application letter is to obtain an interview for a specific job position which the writer mentions in a letter. Writer कौन है? आप, जो आप लिख रहे हैं, राइट. सो solicited हो या unsolicited हो, आपका गोल क्या है कि आपने इंटरव्यू के लिए उनको वादा करना है. For example, the writer states that she is applying for the accounts payable clerk position that is open. When the person writes an unsolicited letter, she hopes that company has any position within a certain area available. जब आप ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड हुए किसी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, सो आपको पता है कि आपने स्पेसिफिक जॉब है उसके लिए अप्लाई करना है. ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लर्क की पोजीशन का बता दिया कि उन्होंने ओपन कर दी जॉब एडवर्टीजमेंट एंड यू आर अप्लाइंग योरसेल्फ, यू अप्लाइंग फॉर दैट पोस्ट, राइट. लेकिन अनसोलिसिटेड में क्या होता है दैट आपको लगता है कि कंपनी की हो सकता है कोई ना कोई सीट अवेलेबल हो और आपको समहाउ एडजस्टमेंट मिल जाए. द लेटर इज मोर general and it states that she is applying, for example, to any type of managerial position within the company. So ये लेटर ज्यादा जेनेरिक होगा, ठीक है, और इसमें जो है आपको उम्मीद होगी कि ऑलरेडी सीट आपके लिए अवेलेबल है और वो किसी भी मैनेजिंग पोजीशन के लिए या किसी भी अथॉरिटी के लिए जहां पे आपकी लेट्स से क्वालिफिकेशन मैच कर जाती है, उससे रिलेटेड कोई भी आपको सीट जो है वो मिल सकती है. ठीक है, 2-3 ऑप्शंस वो रख सकते हैं कंपनी के. अगर आपको जो है हो सकता है अगर आपने एमफिल किया है तो आपको 2-3 ऑप्शंस वो दे दें, right. So then we have the consideration. A person writing a solicited application letter also includes where he heard about the opening. कहाँ से उसको पता लगा, कहाँ से सुनी उसने एप्लीकेशन, कहाँ से उसको मिली एडवर्टीजमेंट, कहाँ से उसको पता लगा. A person
writing an unsolicited letter often state where he heard about the company. वो बताएगा कि उसको एडवर्टीजमेंट का कैसे पता लगा, और जो अनसोलिसिटेड है वो बताएगा कि उसको कंपनी के बारे में कैसे पता लगा. राइट, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है. Both types of letter are used to state details about writer's qualification, background, and skills. An unsolicited letter should also include some company information such as interesting facts or two the writer has learned about the company. So company की जो है तारीफ करनी है, उनके बारे में interesting facts बताने हैं ताकि वो आपको रखें. राइट, सो बेस्ट तरीका यही होता है कि ऑलरेडी यू शुड नो अबाउट द कंपनी, यू शुड हैव सम रिसर्च अबाउट दैट. तो उसी में फिर आप जो है उसको कवर कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि आपने उनकी कंपनी के बारे में लिखना है, बिकॉज यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट इन दैट कंपनी. They are not hiring you and they haven't given any advertisement. You are applying yourself. So you need to be appealing, you need to be catchy, you need to show your interest. So interest आप कब show करेंगे? When you do some research, कि आपको पता है इस कंपनी के थोड़े एक दो बातें के बारे में, interesting facts के बारे में. Then the format and the content. So अब फॉर्मेट एंड कंटेंट में हम स्टार्ट करने लगे हैं कि मतलब हमने एप्लीकेशन को लिखना किस तरह से है. ठीक है, आपको पता है कि दो डिफरेंसेस हमारे पास आ जाते हैं जब हम लेटर को भी लिखते हैं या एप्लीकेशन भी लिखते हैं. चाहे वो फॉर्मल सी एक एप्लीकेशन हो, प्रिंसिपल के नाम भी, तो हमें थोड़ा लेटर भी हो एक ब्रदर के नाम, फादर के नाम, तो हमें थोड़ा सा देखते हैं कि एक अमेरिकन जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है और एक ब्रिटिश डिफरेंस आ रहा होता है. सो यहाँ पर जो है हम ब्रिटिश को फॉलो करेंगे. राइट, सॉरी, हम अमेरिकन फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करेंगे. राइट, सो अमेरिकन फॉर्मेट में अगर हम स्टार्टिंग देखें तो अमेरिकन इंग्लिश द सेंडर एड्रेस इज यूजुअली प्लेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर बिलो द डेट. सो सबसे पहले आपको पता है डेट मेंशन होगी. ठीक है, डेट मेंशन करने के बाद हम सेंडर का एड्रेस मेंशन करेंगे, और वो किस साइड पे करेंगे? लेफ्ट साइड पे करेंगे. देन सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट आपको पता है कि आपका जो भी है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर. राइट, सो वो एक सब्जेक्ट जो वो एक लाइन का होगा. सो डेट के बाद सेंडर, और वो टॉप लेफ्ट पे हमारा होगा, डेट के बिल्कुल नीचे, और उसके बाद फौरन से हमारे पास सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट जो है नेवर लीव द सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक. सब्जेक्ट लाइन जरूर हमने फिलअप करनी है, सब्जेक्ट को हमने लिखना है, और सब्जेक्ट फॉलोज कॉलन. तो सब्जेक्ट के बाद हम 2 डॉट लगाएंगे. ठीक है, और फिर द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. एक लाइन में हमने सब्जेक्ट को खत्म करना है, हमने उससे ज्यादा सेकेंड लाइन हमने तक लेके नहीं जाना. एक लाइन में ही सब्जेक्ट हमारा कवर होगा, इतना शॉर्ट और टू द पॉइंट होगा कि 1 लाइन में ही सब्जेक्ट कवर अप हो जाए. There is good chance that if the hiring manager receives an application with no subject line, they will ignore it without even bothering to open it. ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही नहीं आपका मेंशन होगा तो बहुत सा चांस ये भी है कि जो हायरिंग मैनेजर है वो आपकी एप्लीकेशन को ऑल टुगेदर इग्नोर करे. सो इंस्टेड राइट अ क्लियर सब्जेक्ट इंडिकेटिंग योर इंटेंशंस. अपना बता देना इंटेंशन, या अपनी पोस्ट का बता देना है. सो पोस्ट के लिए बेसिकली सब्जेक्ट होगा. सो दे मे बी हायरिंग फॉर मल्टीपल पोजीशंस एंड यू will want them to identify the position you are interested in. So positions बहुत सी ओपन हो सकती हैं, बहुत सी पोजीशन पे हायरिंग हो सकती है, मल्टीपल पोजीशंस पे. तो आपने अपना सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है ताकि वो जो लेक्चरर की है वो एक तरफ कर लें, क्लर्क की एक तरफ कर लें, फलां की एक तरफ कर लें. राइट, सो आपने यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट, यू हैव टू मेंशन द टाइटल और द पोजीशन इन विच यू आर अप्लाइंग फॉर. In American English, the subject line is placed between the recipient address and the salutation with a blank line in between. So पहले डेट आपको पता है लेफ्ट साइड पे होगी. देन आपका जो भी सेंडर है उसका एड्रेस या उसका टाइटल, उसकी कंपनी, उसकी सिटी. ठीक है, उसके बाद एक स्पेस आएगी, स्पेस के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ कॉलन आएगा. एक ही लाइन में हम सब्जेक्ट को सम अप करेंगे. राइट, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, उसके बाद फिर गैप आएगा, फिर स्पेस आएगी. तो सब्जेक्ट से ऊपर भी स्पेस है, सब्जेक्ट के बाद भी स्पेस है. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ, देखो ये सब्जेक्ट जो है इतना खास है कि इससे ऊपर भी एक स्पेस जो है वो हम लीव कर रहे हैं और इसके बाद भी एक स्पेस लीव कर रहे हैं. उसके बाद हमारे पास सैल्यूटेशन आती है. सैल्यूटेशन आपको पता है जिसमें हम एड्रेस करते हैं. राइट, सो कवर लेटर में हमने
हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना सैल्यूटेशन क्या होती है, तो बेसिकली एड्रेस करना, मुखातिब करना, और एड्रेस भी हमने पढ़ा था किस तरह से मुखातिब करना है, डियर सर या डियर मैडम, या फिर डियर नहीं है तो हम मिस्टर, या अगर उनका नाम पता है तो हम उनका नाम मेंशन करेंगे, राइट, मिस्टर असलम लेट्स से, तो फिर हम कॉमा लगाएंगे। तो ये इस तरह से है कि सब्जेक्ट जो है वो सैल्यूटेशन और सेंडर के जिसको हम सेंड कर रहे हैं, राइट, उसके इन बिटवीन जो है हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। सैल्यूटेशन उसके बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद आती है। उसके बाद थोड़ा सा हमारा वन इंडेक्स होता है, थोड़ा सा आगे जाता है, कॉमा से बिल्कुल नीचे फिर हम लिखते हैं जो भी हमें पता होता है कि हमें जो है फलां सोर्स से पता लगा, एडवर्टीजमेंट से, फलां एडवर्टीजमेंट से पता लगा, राइट, आई वॉज एक्साइटेड टू सी योर एडवर्टीजमेंट फॉर दिस पोस्ट, राइट। फिर हम यहाँ से इस तरह से आगे लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, और एंड पे फिर हम थैंक यू करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए टाइम निकालें, स्केड्यूल करें, और फिर हम उसको खत्म करते हैं सिंसियरली कॉमा, और जो भी फिर आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका ईमेल है, आपकी जो भी आईडी है, फोन नंबर है, इस तरह से हमारा जो है वो एप्लीकेशन या फिर कवर लेटर जो है उसकी फिजिकल फॉर्म इस तरह से हम लिखते हैं। सो यहाँ पे जो बताया गया है बेसिकली वो ये बताया गया है कि सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लीव नहीं करनी, इससे ऊपर भी एक स्पेस है, इसके बाद भी एक स्पेस है, और उसके बाद जो है वो अमेरिकन में सैल्यूटेशन और एड्रेस के इन बिटवीन जो है वो सब्जेक्ट लाइन प्लेस की जाती है, और सब्जेक्ट लाइन से ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी स्पेस है, राइट। देन वी हैव एड्रेसिंग द कॉन्टेक्ट पर्सन या फिर सैल्यूटेशन, एड्रेस कैसे करना है, मुखातिब कैसे करना है। सो देयर इज आर वैरायटी ऑफ कवर लेटर्स, सैल्यूटेशंस यू कैन यूज टू एड्रेस योर कॉन्टेक्ट पर्सन। एब्रीविएशंस हम यूज कर सकते हैं, मिस्टर के बाद फिर हम उसको डॉट लगाएंगे, मिसेस डॉट लगाएंगे। सो दे आर यूजली रिटन विदाउट फुल स्टॉप्स इन ब्रिटिश अमेरिकन एंड फुल स्टॉप्स इन अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन में जो है वो फुल स्टॉप है, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप है, राइट। तो हम अमेरिकन को फॉलो करेंगे, मिस्टर के बाद हम डॉट लगाएंगे। सो इफ यू नो द पर्सन नेम, तो फिर हम उनके पर्सन नेम से हम एड्रेस करेंगे, जैसे मिस्टर, डियर मिस्टर अली जैसे सर नेम है, या डियर मिस्टर माइलर, इस तरह से डॉट लगाएंगे मिस्टर के बाद। एंड अगर आपको उनका नहीं पता तो यू कैन लीव आउट दैट स्पेस, आप डियर सर भी कह सकते हैं, इट्स ओके। डियर सर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, जो भी हमने बात करनी है, स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो इफ यू कैन ऑल्सो राइट द पर्सन फुल नेम, अगर आपको पता है, ओनली इन केस यू नो, और अगर आपको फुल नेम का पता है फिर आप टाइटल को लीव आउट कर देंगे। सो इसमें आप अगर फुल नेम यू नो दैट क्रिस माइलर है तो डियर क्रिस माइलर एंड कॉमा। सो एंड इफ यू डू नॉट नो द पर्सन नेम तो इट्स ओके, आपने उसको नाम मेंशन नहीं करना इससे पहले कि आप अपनी खुद के, आपको जेंडर भी नहीं पता तो आप सिंपल जो है फिर डियर मैडम या डियर सर को भी आप अवॉइड करेंगे, राइट। सो ये चीज जो है आपको मेंशन होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कंपनी की रिसर्च आप कर लें कि आपका हायरिंग मैनेजर कौन है, अगर मेल है तो मैडम करके मुखातिब करें, फीमेल है तो फिर फीमेल को करें, राइट। सो कुछ जो है वो टेबल में जिस तरह से अगर हम देखें, डियर सर, डियर सर्स भी हो सकता है, तो ईमेल एड्रेस के लिए हम करते हैं ब्रिटिश में। जेंटलमैन हमारे पास अमेरिकन में होता है, डियर मैडम हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश है, लेडीज हमारे पास अमेरिकन है, लेकिन लेडीज जो है वो ऑकवर्ड लगता है, ट्राई टू अवॉइड दिस। डियर सर और मैडम जो है सबसे मुझे पसंद है कि ये जो है वो अगर आपको नाम नहीं पता तो यू कैन सिंपली यूज डियर सर, डियर मैडम, कॉमा एंड स्टार्ट स्टेटिंग योर सब्जेक्ट, राइट। जो भी आपने बात करनी है आप उसको फिर स्टार्ट कर दें। टू हुम इट में कंसर्न जो है वो ज्यादा जेनेरिक हो जाता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। देन वी हैव हाउ टू फॉर्मेट द सैल्यूटेशन। Once you have chosen a salutation, follow it with comma लिखेंगे एंड देन स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैसे है, डियर सर कॉमा थोड़ा सा आगे करके वन इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है, सर से थोड़ा सा पहले हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, दैट थ्रो द एडवर्टीजमेंट इन डॉन, आई कम टू नो दैट यू नीड द इंग्लिश लेक्चरर, या फिर जो भी आपने लिखना है, राइट। सो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारी सैल्यूटेशन होगी। देन वी हैव द बॉडी ऑफ द cover letter. Capitalize the first word of your text, even the salutation ends with a comma. First word आपका comma even के dear sir के बाद comma, first word जो है उसका वो भी आपका capitalize होगा।
ठीक है, जैसे थ्रो है तो थ्रो द एडवर्टीजमेंट, थ्रो का टी जो है वो कैपिटल होगा. सो द टेक्स्ट इज लेफ्ट जस्टिफाइड, या 1 इंच का मार्जिन थोड़ा सा आगे होगा. लेफ्ट जस्टिफाइड का मतलब ये है कि थोड़ा सा आगे होगा, राइट, बिल्कुल डियर के नीचे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे हम लिखेंगे, स्पेस थोड़ी सी ज्यादा देंगे. द बॉडी ऑफ योर कवर लेटर लेट्स द employer know what position you are applying for and why the employer should select you for an interview. This is where you will sell yourself as a candidate, right? अपने आप को बेचना है, so make sure that you are selling yourself well, right? इसके लिए आपने रीजन स्टेट करना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जाए. द बॉडी ऑफ द कवर लेटर शुड कंटेन एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड स्किल्स, राइट. इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन वी हैव कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपने उनको बताना है कि मैं अपनी रिज्यूम को साथ अटैच कर रही हूँ. ये वो पार्ट है जहां पे अपने अपने कवर लेटर को बिल्कुल सम अप करना है. आपने थैंक यू बोलना है और ग्रीटिंग्स होनी चाहिए. 2-3 लाइन में आप इसको सम अप कर दें, ठीक है. सो इफ यू हैव अटैच्ड योर रेज्यूम मेंशन दिस एज अ पार्ट ऑफ योर कंक्लूजन. इसको भी मेंशन करें कि हाँ जी मैं साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा या कर रही हूं. देन फिनिश योर कवर लेटर बाय थैंकिंग द एम्प्लॉय for considering you for the position. Include information on how you will follow up. The concluding paragraph contains your contact number and पे आपको पता है आपका email भी जाएगा, आपका phone number भी जाएगा. Write the greetings 2 line below the last paragraph. ठीक है, so thanking you in anticipation या जो भी है वो आपने लिख देना है एंडिंग पे. कवर लेटर की क्लोजिंग में कुछ लफ्ज जो है दैट इज अप्रोप्रिएट दैट यू शुड यूज, वो कौन से हैं? सिंसियरली यूज कर सकते हैं, सिंसियरली योर्स, रिगार्ड, बेस्ट रिगार्ड, विद बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, योर्स, ट्रूली. ट्रूली की स्पेलिंग जरा देख लें. बच्चे अमूमन ट्रूली में जो है वो ई भी लगा देते हैं, सो वो कर देते हैं TRULEY. सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करें. मोस्ट सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली योर्स, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन. ये हम जो है एंडिंग में हम यूज कर सकते हैं. दे आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट यू कैन यूज व्हेन यू आर एंडिंग योर कवर लेटर. क्लोजिंग नॉट टू यूज, ये वर्ड्स हैं कुछ ऐसे जो आपको यूज हरगिज नहीं करने, ठीक है. इवन कि आप कैजुअली भी जो लिख रहे हैं तो वो जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें भी आप अवॉइड करें कि ये चीजें आपने नहीं लिखनी. बेस्ट सिंसियरली जो है वो बेस्ट होता है. सो कवर लेटर में तो खास तौर पे क्योंकि आपको पता है हाई पोस्ट के लिए जा रही है तो मेक श्योर कि यू आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जैसे इट इज है तो आप इट्स कर दें. वोना, गोना, इस तरह की स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है. और इसके अलावा आप जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो, बिकॉज हाई अथॉरिटी को जा रही है, इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ेगा. सो क्लोजिंग इन लफ्जों से बिल्कुल मत करें. affectionately, best wishes, cheers, eagerly waiting for a response, fondly, warm regards, warmly, take care, take it easy, have a good day, have a nice day, smiles, love, yours faithfully. एब्रीविएशंस को अवॉइड करें. कोई भी इमोजी है, इमोटिकॉन है, कोई भी फेस सिमिली या वो आपके पास जो फेसेस होते हैं उनको सेंड मत करें. और अगर आपके मोबाइल से ऑटोमेटिकली सेंड भी हो रहे हैं तो उनको रिमूव कर दें सेटिंग से जाके, कि ये इंप्रेशन जो है बहुत बुरा पड़ेगा. हाउ टू क्लोज द लेटर. जी, क्लोज कैसे करना है? आपने कॉमा फॉलो द क्लोजिंग विद अ कॉमा, जो भी आपने लाइन लिखी उसके बाद कॉमा, एंड देन ऑन अ न्यू लाइन पुट योर नेम, राइट. जैसे थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन है तो उसके बाद फिर आप एक न्यू लाइन लेंगे और उसमें फिर आपने क्या करना है, जैसे थैंकिंग एंटिसिपेशन तो हो गया, उसके बाद आपने करना है जैसे योर सिंसियरली, राइट. सिंसियरली के बाद आपने कॉमा लगाया और कॉमा के बाद आप वो कहते हैं लाइन आपने छोड़नी है. सो पुट योर नेम on the next line, and if you're sending an email you can add your contact information below your name, right. contact number भी जो है आप अपना देंगे अगर आप ईमेल में के थ्रू जो है वो कर रहे हैं. सो किस तरह से होगा? बेस्ट रिगार्ड्स, कॉमा, एक स्पेस आएगी, फिर योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर फोन नंबर. whichever sign off you choose, make sure always to capitalize the first letter, ठीक है. सो योर्स का वाई कैपिटल, इस तरह से योर आपका जो ईमेल का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, ठीक है. तो ये जो है छोटी सी नेम जो है ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ड भी, सरनेम भी और लास्ट नेम भी आपका कैपिटल होना चाहिए. इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.
जी, नाउ दिस इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें आप डेट देखें, डेट किस तरह से मेंशन करनी है, पहले मंथ मेंशन होगा, जनवरी 4 है तो उसके बाद फिर कॉमा पे 2020, राइट, एंड पे डॉट। इस तरह से आप मेंशन करेंगे, डेट का डीबी कैपिटल करेंगे। देन द टाइटल ऑफ द हायरिंग मैनेजर, जो भी प्रिंसिपल है या जो भी आपका हायरिंग मैनेजर है उसका टाइटल, ठीक है, किसको जा रहा है। कंपनी का नेम, सिटी, फिर उसके बाद स्पेस है, स्पेस के बाद सब्जेक्ट है, कॉलन है। फर्स्ट वर्ड एप्लीकेशन का आपको पता है कि कैपिटल होगा और आगे जो भी आप बोलेंगे उसका हर चीज, हर फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। पोस्ट का पी बड़ा होगा, एप्लीकेशन का ए बड़ा होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरार है तो लेक्चरार का एल कैपिटल होगा। देन अगेन स्पेस, फिर आपने उसमें मुखातिब कैसे करना है, तो डियर है तो डियर, या फिर जो भी सर है या फिर मिस्टर मिसेस जो भी उनका नाम है वो आपको पता है। देन कॉमा लगाना है, फिर थोड़ा सा हम आगे से लेफ्ट जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। सो उसमें स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना है, आउटलाइन वेयर यू सॉ द जॉब पोस्टिंग एंड एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन वर्किंग इन दिस रोल। कहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखिए और अपना इंटरेस्ट बताना स्टार्ट करेंगे। देन सेकेंड पैराग्राफ में अमूमन जो हमारा लेटर होता है उसकी बॉडी में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। सो सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, योर क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू फिट फॉर द जॉब, और फिर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे कंपनी के गोल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं। एंड देन एंड कैसे करना है, योर अप्रिसिएशन फॉर द हायरिंग मैनेजर फॉर रिव्यूइंग योर लेटर एंड इंक्लूड एनी फॉलो अप इंफॉर्मेशन इफ एप्लीकेबल, थैंकिंग देम फॉर देयर टाइम, ठीक है। उन्होंने टाइम दिया, आपके रिज्यूम को पढ़ा है। एंड कैसे करेंगे, दैट आई लुक फॉरवर्ड मीटिंग टू यू या लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू। उसके बाद हमारे पास फिर स्पेस आएगी, स्पेस के बाद हमारा क्लोजिंग है, क्लोजिंग में हम सिंसियरली लिख लेते हैं, वो बेस्ट है। उसके बाद कॉमा, फिर आपके सिग्नेचर आ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हार्ड कॉपी में जा रहा है तो सिग्नेचर लाजमी जाएंगे, फिर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और आपका ईमेल अकाउंट। Okay, now moving towards sample 1, August 1, 2020 dot, Franklin Lee, CBI Industries, 39 Main Street, Town Villa, New Hampshire. Subject, space, subject, application for the post of operations assistant, space, dear Mr. dot Lee, comma, left indexed. I was excited to see your ad for the position of operations assistant in your Town Villa officers. I have 5 years of experience as an operation assistant associate. In my recent role at ABC Corporation, I fulfill orders, resolve customer issues, applied order supplies, and prepared reports. In my previous role, I have done bookkeeping, data entry, and sales support. Basically, anything your department needs to run smoothly, I can do, and most likely I already have experience doing it. My other skills, strong communication skills, excellent attention to details and organization skills, top-notch customer service, experience in the industry and passion for the product, adept at all the unusual professional software including Microsoft Office. I have included my resume in your review. Please contact me if you have questions or would like to schedule an interview. Thanking you for your consideration. Space, sincerely, Mary Gracia, 12 Roger Avenue, Town Villa, New Hampshire, phone number and email account. So now sample 2 you have to read by your own self. Same goes with sample number 3, ठीक है। जो first 2 थे वो solicited थे, जो third वाला है वो unsolicited है, राइट। और ये आप लोगों ने खुद रीड आउट करने हैं, जस्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन किसको किस तरह से लिखना है। नाउ योर